اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ بس بہت ہو چکا، پاک فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت پر تنقید کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے پی ٹی آئی ذرائع سے متعلق اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ بات سختی سے بتا دی گئی ہے کہ فوج مخالف مہم بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق عظمیٰ خان کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے حالیہ ملاقات بھی کشیدگی کا سبب بنی۔ ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بہن کی جانب سے دیے گئے بیانات کے سبب یہ ملاقات کروانے والے چند وفاقی وزراء اور ایک اہم پارلیمانی شخصیت بھی ہزیمت کا شکار ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ نے آپسی گفتگو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ان کے سخت بیانات کو عوام میں دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی بطور جماعت 9 میں افواج پاکستان فیلڈ مارشل سے متعلق گفتگو سے اظہار لا تعلقی اور معذرت کریں تو بات چیت کا کوئی راستہ کھل سکتا ہے۔ رانا ثنا نے جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت اور بانی پی ٹی آئی نے ادارے پر براہ راست تنقید کی۔ یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ بالکل واضح ہے۔ اس ڈیڈ لاک میں جو ہے وہ اگر کبھی جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس میں کمی لا سکتی ہے یا اس کو کھول سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت بھی اور عمران خان صاحب کو انفرادی طور پہ بھی 9 مئی افواج پاکستان اور سپہ سالار فیلڈ مارشل صاحب کے متعلق جو انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے جو کہ بہت زیادہ باعث اعتراض ہے، تو اس سے نہ صرف لا تلقی کا اظہار کریں بلکہ اس کے اوپر معذرت کریں، افسوس کا اظہار کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق سے پرانی بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینے کا اعلان تو زور و شور سے کیا، مگر اب تک گاڑیاں واپس اسلام آباد نہیں بھیجیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں بلٹ پروف گاڑیاں اب بھی خیبر پختونخوا پولیس کے پاس موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا کے ہائی رسک علاقوں میں تعینات پولیس افسران کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے یہ گاڑیاں فراہم کی تھیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے انہیں پرانی اور ناقص قرار دے کر واپس بھیجنے کا اعلان کیا اور کہا تھا کہ ایسی گاڑیوں کو رکھنا صوبے اور پولیس کی توہین ہوگی۔ بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں، جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپڈیٹ کریں اہم خبر سے۔ کوئٹہ کے علاقے موسیٰ خیل میں چوری کے شبے میں 8 افراد کو انگاروں پر چلانے کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد جرگے کے 6 ممبران کو گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ 2 کی تلاش ابھی جاری ہے۔ کوئٹہ کا علاقہ موسیٰ خیل جہاں چوری کے شبے میں 8 افراد کو انگاروں پر چلانے کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد جرگے کے 6 ممبران کو گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں 17 سال کی طالبہ پراسرار طور پر ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق طالبہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق طالبہ کی موت بظاہر دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کی۔ علیمہ خان اور ان کے وکلاء عدالت پیش نہیں ہوئے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے علیمہ خان کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کی استدعا کی گئی۔ پروسیکیوٹر نے یقین دہانی کرائی کہ ملزمان نے عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ہر سماعت پر پیش ہوں گی۔ عدالت نے علیمہ خان کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے علیمہ خان کے قابل ضمانت وارنٹ اور ضمانت منسوخی کے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے علیمہ خان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ علیمہ خان کیس کی سماعت ملتوی ہونے کے بعد عدالت پہنچ گئی۔ جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیر بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، علیمہ خان کی عدم حاضری پر عدالت نے آج ایک مرتبہ پھر ان کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں آج علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج
पर दर्ज मुकदमे की समाअत थी। अलीमा खान अदालत पेश नहीं हुई, ना ही उनकी तरफ से कोई वकील अदालत पेश हुआ है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि अलीमा खान के जमानती मचल के जब्त किए जाए, जिसके बाद अदालत ने अलीमा खान के 10-10 लाख के 2 जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया है। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने अदालत में मौक़िफ़ तैयार किया कि मुल्ज़िमा ने खुद न पेश हुई, ना उनके वकील पेश हुई, और लिहाजा मुल्ज़िमा ने अदालत को ये यकीन दहानी कराई थी कि वो हर समाअत पे पेश होंगी, लिहाजा उनके जमानती मचल के जब्त किए जाए। अदालत ने अलीमा खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और अदालत ने जमानत मनसूखी के नोटिस भी अलीमा खान को जारी किए हैं, और अदालत ने मजीद जो समाअत है वो 15 दिसंबर तक मुलतवी की है। अलबत्ता अलीमा खान समाअत मुलतवी होने के बाद अपने वकला के हमरा अभी अदालत पहुंची हैं। शुक्रिया शबीर डार आपका। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए FC हेडक्वार्टर योग में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। IGFC नॉर्थ और कबायली माहिदीन के इश्तराक से मुनक़्क़िद की जाने वाली खुली कचहरी में अवामी मसाइल के हल और अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील देने पर गौर किया गया। IGFC नॉर्थ का कहना था कि अवाम ने दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहद रहकर मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशें नाकाम बनानी है। इस मौके पर कबायली माहिदीन ने कहा कि खुली कचहरी अवामी मसाइल के हल का मौसर ज़रिया है। सालाना इंटरनेशनल कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपो कॉन्फ्रेंस का आज से कराची एक्सपो सेंटर में आगाज़ हो गया है। सनती शोबे की तरक्की और तोसी के फ़रोग़ के लिए SIFC के तहत नुमाइश में 10 से ज़ायद ममालिक से तकरीबन 850 बैनुल अक़वामी नुमाइश कुनंदगान, 2000 ब्रांड्स और 55,000 से ज़ायद लोगों की शिरकत मुतवक्के है। 4 रोज़ा नुमाइश का थीम टेक्नोलॉजी एट द हार्ट ऑफ ब्यूटी एंड कंज्यूमर इनोवेशन है। नुमाइश में वर्कशॉप, सेमिनार्स और पैनल डिस्कशंस भी शामिल। ये इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मायारी मसनूआत बनाने वाले मुल्कों की सफ़ में नुमाया मौका फराहम करेगा। भारत में इंतहा पसंद BJP रहनुमा मसाजिद की तामीर पर खुलेआम मुसलमानों को धमकियां देने लगे। मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद की तामीर की BJP की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही है। MLA रामेश्वर शर्मा ने मुसलमानों को खुलेआम धमकी देते हुए तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तान का हदफ 2028 से रबा से बी के निज़ाम पर मुंतकिल होना है। रिबा आजकल दुनिया में राइज दुनिया का माली निज़ाम है। बे तिजारत कुरान ने जहाँ रिबा की ममानियत की है, वहीं बी यानी तिजारत को सराहा है। सोच दी है कि माल चंद लोगों के पास जमा ना हो, बल्कि वो जिस्म में खून का सामा हो। रियाज एंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का बलूचिस्तान मुल्क के कौमी जैतून मंसूबे का क्लस्टर 3 भी है। यूरोपीय यूनियन के ताउन से बलूचिस्तान 2007 से जैतून काश्त कर रहा है। 1 एकड़ पर 110 दरख्त लग जाते हैं। बलूचिस्तान में 8000 एकड़ पर 9 लाख जैतून के दरख्त काश्त हो चुके हैं। 1 एकड़ 3200 किलो जैतून पैदा करता है, जिससे तकरीबन 900 लीटर जैतून का तेल हासिल होता है। यूरोपीय यूनियन की माली मुआवनत हासिल करके बलूचिस्तान के किसानों ने अपने छोटे फार्म बना लिए हैं और उनकी मसनूआत को दुनिया में सराहा जा रहा है, और अब वो चाहते हैं कि इसे स्केल करें। पहले मरहले में अगर एक 10,000 एकड़ पर फार्म बनाएं तो 110 के हिसाब से वहाँ 11 लाख दरख्त लगाने होंगे। एक दरख्त तकरीबन 700 रुपए का है। ये 1 अरब रुपए का खर्च है। फार्म पर मानसून पानी जमा करने और उसकी ड्रिप इरिगेशन के 1 अरब रुपए और रखें। 1 अरब रुपए मॉडर्न डेटा सेंटर के लिए, 1 अरब तरक्याती कामों के लिए रखे जाएं, तो 10,000 एकड़ फार्म की कैपिटल कॉस्ट तकरीबन 5 अरब रुपए होगी। ये रकम सुकुक बेचकर हासिल की जा सकती है। फार्म को हर फसल के जारी खर्चात के लिए भी रकम चाहिए। वो क्रॉप साइकिल पेपर बेचकर वो ये भी हासिल कर सकता है। हर दरख्त 3 साल बाद फल देगा। इस दौरान फार्म के तरक्याती कामों से सुकुक की वैल्यू सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग से बढ़ती रहेगी। 3 साल बाद आज की पैदावार के हिसाब से जो पहली फसल आएगी वो 10 लाख लीटर जैतून के तेल की होगी, जिसकी मालियत 1500 रुपए किलो के हिसाब से 14 अरब रुपए बनेगी।
हासिल होने वाली रकम से सबसे पहले क्रॉप पेपर का असल अदा हो जाएगा। जैतून से तेल निकालने का काम फार्म अपनी एक जैली कंपनी के जरिए कर सकती है, जिसका प्लांट सुकुक से बनेगा और जैतून की पैदावार खरीदने की रकम क्रॉप प्रोसेसिंग बिल से आएगी। डिजिटल दौर है, सुकुक और बिल्स के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर टोकन्स बन सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान इन टोकन्स को कौमी बचत स्कीम में आवाम को पेश कर सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले बलूचिस्तान के किसानों की कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होंगी। वो अंगूर, अनार, खजूर, बादाम के शराकतदारी के तवील और कलील मुद्दत के सर्टिफिकेट्स की सप्लाई दे सकते हैं। नफ़े का पहला हिस्सा उश्र का, एक ज़मीन का, एक रकम देने वालों का, उजरत के अलावा मजदूर का एक हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के किसानों की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का हो सकता है। उसमें आप नाजरीन भी सरमायाकारी करें। रियाज़ैंडी, जियो न्यूज़, कराची। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द है। सूबे में मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान की अगर मौसम की बात की जाए तो वादी कोयटा उसके गिरदो नवा में मतला साफ़ और मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान जो शुमाली अजला हैं जिसमें कि सैफुल्ला, पशीन, मुस्लिम बाग, कान में तरजई, कल्लात और उससे दीगर इलाके जो शामिल हैं वहाँ पर मौसम सर्द और सुबह और शाम के औकात में शदीद सर्द रिकॉर्ड किया जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़ोब और कोयटा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है, जबकि वादी ज़ियारत में भी -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के बेशतर अज़ला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस सर्द मौसम के दौरान सुई गैस प्रेशर में कमी और सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सर्द मौसम में गैस की सूरत हाल की बेहतरी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए जाएँ। जी, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ तक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तफसील बताएंगे अबू बकर सिद्दीक। जी, पेशावर में इस वक्त मौसम सर्द और खुश्क है, मतलब मुकम्मल तौर पर साफ़ है, धूप निकली हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज पेशावर का दर्जा हरारत जो है वो 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिनों तक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जो बालाई अजला है, पहाड़ी जो अजला है, वहाँ पर जो है शदीद सर्दी जो है वो महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का बताना है कि तो मैदानी अजला है तो वहाँ पर जो है सुबह और शाम के वक्त जो है वो शदीद धुंध चाहिए रहेगी। धुंध के बायस मोटरवे M1 को भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है बंद किया जाता है और हदरेगाह में बेहतरी आने के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाता है। जी, और आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर आज भी स्मॉग की वजह से आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में पहले नंबर पर मौजूद है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 रहा। हफ्सा उस्मान तफसील बताएंगी। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक का राज आज भी बरकरार है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त जो लाहौर का AQI लेवल रिकॉर्ड किया गया है तकरीबन 494 रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ा बहुत ज़्यादा आलूदा है और इंसानी सेहत के लिए माहिरीन कहते हैं कि ये फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है उसमें लाहौर जो है वो आज भी पहले नंबर पर है। आलूदा तरीन शहरों में जो है वो आज लाहौर जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। माहिरीन का यही कहना है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। बाहर अगर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें। पानी का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा करें क्योंकि इस फ़िज़ा से, इस गर्द आलूद फ़िज़ा से जो है वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि फ़िलहाल बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो इसी तरह से मौसम खुश्क सर्दी जो है वो पड़ती रहेगी और स्मोक भी जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी। जी, इस्लामाबाद और गिरदो नवाह का दर्जा हरारत कम होकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि गर्द आलूद हवाओं के बायस फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ गई है। मज़ीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान अली शाह।
जी इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और खुश्क है। गुज़श्ता कई दिनों से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वफाकी दारुल हुकूमत में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बलाई इलाकों में सर्दी की शिदत में मज़ीद इजाफा हुआ है और बाज़ मुकामात पर दर्जा हरारत मनफी में जा चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि दिन के औकात में हवा खुश्क और रातें खासी ठंडी रहेंगी। फ़िज़ा में आलूदगी की मिकदार बढ़ गई है। डॉक्टर ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो गर्द आलूदा हवाओं से बचने के लिए मास्क और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और खुनक रहने का इम्कान है, जबकि आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। शवाला असलम मौसम का अहवाल बताएंगी। कराची में मौसम की इन दिनों कुछ यूँ सूरत हाल है कि दिन के औकात में जो गर्मी की शिद्दत है वो थोड़ी बहुत महसूस की जा रही होती है। अलबत्ता रात के औकात में जो मौसम है वो खुनक हो जाता है। कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का भी इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 60% से ज़ायद है, जबकि जो खुश्क हवाएँ हैं वो इस वक्त शहर में चल रही हैं और बहुत ही हल्की रफ्तार से ये हवाएँ चल रही हैं। इसके साथ ही महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दिसंबर का औसत जो दर्जा हरारत होता है वो 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही होता है, लेकिन इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि कराची में दिन के औकात में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो इससे ज़्यादा ही रहता है और 30 से 31 के दरमियान ही जो दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा वो जा रहा है इस वक्त। लिहाजा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा है वो मिड दिसंबर से मुमकिन है। जी